So the next exercise is plan with inverse dimension formulas, right? Yes. So in the business process of determining a planned income statement, you are interested in the resulting gross profit. In addition to calculating gross profit, you also need to be able to enter the target gross profit and have the system back calculated cost or revenue to achieve the goal. In order to do this, you will use an account with an inverse formula. Okay. So in this exercise, you will be doing open your story, exit story, create a private version, access the formula for gross profit, input the target gross profit, and back back calculate cost, and input the target gross profit and back calculate revenue. That we are going to do it. Okay. Okay. So we do have a open. I mean this access this particular story. So we'll open it. Okay. Planning template story we can use it. So same story we are going to use it. So open the story in the view mode in the disaggregation page. So our story is getting open into the disaggregation page, and here like whatever we did it till last session, Yes. so that we can see is private plan 03 we did it right, so that we can Mm. see over there. Now create a private version, so switch to edit mode. So we'll go and switch to edit mode. So we'll get the next version name is private inverse plan. Okay. So we have to go into the inverse planning page as it is telling into that. So we'll go to the inverse planning page, create a new private version. So I will create the new private version is right click on top of this actual version and copy. This is the way, either ways you can do it from there. Okay. Yes. So we'll give the name. So we'll go. So here we'll use planning. So that is done. So we have done this and we have excluded our actual version because we want to see the data for new version Okay. which we are clear right now. Okay. Now access the formula for gross profit. So in this scenario, you want to test the dimension member formula to meet your business requirements. You will test two calculated accounts. So this is the gross profit calculated amount. So the calculation is net revenue minus cost of goods sold. Okay, so the formula contains the ID is this one. Okay. So where exactly it is gross profit calculated. Here you can see this is our account. So if we want to
So when you just click into this particular account and select it, you will see the formula over here. So how you will open that formula bar? Just click into this three dot, Tools. and here you have an option called formula bar. This is the one way, and other way also is there. Other way around is from here also. And click into the show and hide, and from here also you can see the formulas. Okay, Yes. so that is also possible from there. Okay, let me just click into the formula bar. Select the accounts. When I select the accounts, I can able to see the formula bar over there. Formulas. So any account you will see, you will select it. So if there is no calculation, so you will see as it is same accounts over there. If there Okay. is a formula included, so you will see formula over there. Okay. Yes. So here for gross profit inverse, gross profit calculated, we can see Yeah. this account minus this account. Okay. And for gross profit inverse, we do have a this much calculation. Relations. This account minus this inverse, this account is equals to this account minus this, and or inverse, this is the formula, total formula we can see over there. So that is what we can see over there. Okay, so display the gross profit calculated formula that we have seen, and this one also we have seen. This is the formula over there. Okay, Yes. now input the target gross profit and back calculated cost. So change this particular to this 200 million for Jan 2025. So go to the intersection of this particular account and go into the Jan 2025 and enter 200 million. Okay. So the total cost of goods goes to 132 to 107. Okay. So here you can see the cost of goods sold. If I will go and see inside this, so we do have many accounts over there. Raw material, labor, purchase price variance, other accounts are there. Okay, so if I talk about this particular gross profit calculated account, so here we do have a H11 0004 times, H12 004 times. Okay, Yes. so which account it is? Um, this is the one, H12 0004 times, that is the account, and gross revenue is net revenue is H11. So net revenue minus cost of goods is our um, gross profit calculated. Okay. Okay. I mean, that is the calculation basically. Okay. So if I make the changes, so any values into this or any values into our cost of goods sold or net revenue, it will affect uh, gross profit calculated or inverse or vice versa. Okay. Okay. So what it is meaning is, for intersection of this gross profit inverse and Jan enter 200 million. So gross profit inverse and Jan 2025, here we have to, what is the formula for this? I mean, again, same H11 and H12 account is getting used over there. Okay. So that is going to getting changed. I mean, when we make the changes over there, so our uh, cost of goods and net revenue also going to be reflected automatically. That's what it mean to say. Okay. So Yes. here in Jan 2025, I will make in Jan 2023, I have to make it to 200 million. Okay. So I will just enter the values 200 M. So as an inverse account, uh,
Something went wrong. Let me just undo it. दूसरी Hmm? Version history. So I will revert back into the original state, and where I have to enter the values. To intersection of gross profit inverse, and enter 200 million. So H12 cost of goods sold from 130 to 107. Right. So what I will do is 200 M. So I have to make it 2 plus. If I'm making plus 200, so it is getting minus. Let me just go back. So now 107. Okay. So instead of using plus, 200 million, you have to just add up 200 million values. So it will overwrite the values, whatever the value was there, it is going to overwrite over there, right? So you can see because of the inverse calculation, when we have entered the value into the gross profit inverse, what is happening is wherever that base account is there, the value is also getting reflected into that. Clear? So that's what it meant to say. Okay, so that is the inverse calculation, we can say. So doing the undo changes, you will be able to see the changes over there, how it is happening, right? So we can just revert back the changes. Now next is input the target gross profit and back calculated revenue. Okay, so gross profit में हम value डालेंगे and then back calculated revenue कैसे होगा, we'll see it over there. Okay, so log H112 gross cost of goods sold. So go to the intersection of these values and right click and log the cells. Okay, so what I will do is here we'll log the cells, right click and log the cell. So locking the cell you already know. So when we lock it, so whatever the changes will do, it is not going to get changed, it will remain same. Okay, now change gross profit inverse to 200 million for Jan 2025, same thing. Okay, अभी जो हमने किया था. ओके, सो अभी हम इसको चेंज करते हैं. तो अभी हमारा 107 हो गया था, राइट? अभी देखते हैं कि क्या होता है. चेंज हुआ नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ, बट अपर जो भी हायरार्की है दैट गॉट चेंज, बट दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज स्टिल रिमेन सेम. ठीक है, बिकॉज इनवर्स calculation doesn't work into it. Okay, so net revenue got changed from 307 to 332. ये देखो हमारा नेट रेवेन्यू जो है वो चेंज हो गया, बट ये वाला चेंज नहीं हुआ. ओके, so undo the changes. So we can just again click back into the entries and we'll see it. ठीक है, save the story and return back to the home screen. ठीक है, तो ऐसे आप जो हमारे कैलकुलेटेड अकाउंट्स हैं उसमें अगर आप कैलकुलेशन या इनवर्स कैलकुलेशन या बैक कैलकुलेशन आप देखना चाहते हो तो you can try to enter the manual entry, you can try to see and how you can check all the for the higher level of the accounts, or we can say parent account of the hierarchy, how it is getting changed. You can see it from this particular exercise. Yes. Okay, let's save it. Next exercise is distribute data with the planning panel. Okay, so let me go into so in this exercise basically you need a way to input forecast values, um,
by country and efficiently distribute and redistribute the data to stores based on your own criteria. To do this, you will use the built-in feature of the planning panel, so you can perform some advanced Yes. distribution in the data tables. Okay. So over here, you can again open the same exercise as same story, create a private version and plan over values for the United States and distribute to the region and distribute an incremental forecast increase. Okay, अभी तक हमने जो वैल्यू डाला हुआ था, I mean whatever value we have entered, that is what it was happened over there. But now how we'll do the incremental forecast? मतलब पहले मंथ में 10 रुपए बढ़ाया, दूसरे मंथ में 20 रुपए बढ़ाया, राइट? तो बेस्ड ऑन द प्रॉफिट हम क्या करते हैं कि इफ विल सी कि ज्यादा सामान बिक रहा है, आई मीन कम सामान है एंड इट इज लेस इनटू द मार्केट, तो क्या करते हैं लोग वाग उसका प्राइस बढ़ा के बेच देते हैं, राइट? तो देखे कि भाई मार्केट में सब कुछ खत्म हो गया है, राइट? सो उस बेस में क्या करते हैं कि दे विल इंक्रीज 5 more rupees। अब सब्जी मार्केट में गए कहीं भी जाके देखोगे आप, और जहाँ पे ज्यादा रहेगा तो दे विल रिड्यूस द प्राइस सो दैट यू नो दे कैन एटलीस्ट सेल एवरीथिंग। ठीक है, सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन हैज डन द डीलिंग विद for Salesforce project, for example, they want to implement the Salesforce using Salesforce, some technology they want to use it and they want to deliver the project. So what will happen is initially they think that they need you know 20 people to set up the project team, right? And later point of time they have to deliver that project, and sometime what they do is they keep 2 3 higher experienced people who can work into the project, and other people they will keep less experience so that you know they need not to pay them good money uh, to them, right? So most of the team when we work into the support project, right, so we will see into the that structure only. So less experience वाले जो खाली monitoring करना है, okay, and documentation करना है, kind of those things, right? तो उसके लिए वो 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस वाले को रख लेते हैं जिसमें उनको सैलरी कम देना पड़ता है, बाकी जो उनको मेजरली चाहिए 1 2 बंदे वो हायर एक्सपीरियंस वाले रख लेते हैं सो दैट दे कैन मेक प्रॉफिट फ्रॉम देयर। ठीक है, सेम थिंग। तो उस हिसाब से यू विल थिंक कि how much cost you are getting from the project estimation and how much you have to invest, accordingly you will forecast the incremental और incremental increase of the forecast. So पहले month में 2 लोग रखेंगे तो काम हो जाएगा कि in the first 2 months what will happen is just project planning and requirement gathering will happen. So whoever is having good experience they will keep those guys. ठीक है, and when you actually start development into the system, so they need 2 more persons, so they again hire 2 more person into the project to get the delivery done. ठीक है, तो वैसे I mean forecasting and planning gets done from the back end. Okay, so not only in our projects, up, I mean if you are a farmer, if you are a normal you know local store owner, कहीं भी you can see similar kind of approach will be there. ठीक है, you will use 2 pages in the story. ठीक है, the first page is store plan page and next one is store type plan page. ठीक है, so we already logged in, again we'll open the same story we are going to work upon. Okay, so create a private version, so we'll create a new private version into the same story. So switch into the edit mode and go into the store type plan page. So I will go into that. So here we do have a store type plan and store plan. 2 pages will work. So till now we worked into the disaggregation, we worked into the inverse plan, mass data entry also we worked, right, already. Now we work into the store type plan and store plan.
ठीक है। तो अभी स्टोर टाइप प्लान में यूज द वर्जन मैनेजमेंट टू क्रिएट अ ब्लैंक प्राइवेट वर्जन, ठीक है। वर्जन मैनेजमेंट नेक्स्ट टू द वर्जन, जस्ट क्लिक इनटू द क्रिएट ब्लैंक प्राइवेट वर्जन, ठीक है। तो कहाँ की बात कर रहे हैं वो, जस्ट सेलेक्ट इट, क्लिक इनटू दिस थ्री डॉट्स, गो इनटू द वर्जन मैनेजमेंट, आपको नया टैब ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्जन मैनेजमेंट, so एक पब्लिक वर्जन हमारे पास है, we have to create another private version, so we'll click into this plus button, ठीक है। अभी तक हमने डायरेक्टली कॉपी किया था, अब हम फ्रेश बनाएंगे, ठीक है। फ्रेश वाला भी हमने पहले किया हुआ है, राइट। Yes, sir. ये रिपीटेटिव है बट थोड़ा सा बिजनेस सिनेरियो अलग है बस, ओके। थोड़ा यहाँ पे डिटेल्ड बिजनेस सिनेरियो है, बाकी एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। This whole part is going to be done by the business people only, okay. You are going to help technically to them कि कैसे वर्क करेगा करके, okay. Functionally you will not know what exactly the meaning, what exactly the requirement, okay. तो आपको कौन बताएगा वो सब, बिजनेस ओनर, जिसका दुकान रहेगा वो बताएगा, राइट। हाँ, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना नहीं करना, ओके। इट्स हिज चॉइस, ठीक है। okay. प्रॉफिट होगा तो उसका होगा, लॉस होगा तो उसका होगा, Hmm. ओके। तो वो चीजें, आई मीन whoever is the owner, they have to decide it, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ये नया बना दिया, ओके। एक्सक्लूड द प्लानिंग वर्जन, सो ये हमने कर दिया। प्राइवेट वर्जन वी हैव क्रिएटेड, नाउ एक्सक्लूड द प्लानिंग वर्जन जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, सो विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। सो नाउ द वन विच यू हैव क्रिएटेड वी कैन सी इट। तो यहाँ पे एंटिटी है हमारे पास, पेरेंट नोड है, यूनाइटेड स्टेट है, यूआरसीज है, इससे स्पेसिफिक है, इसका डेटा है, वी डू हैव अ प्लानिंग डेटा फॉर कब तक है, लास्ट आई मीन नेक्स्ट 1 year टिल दिसंबर, ठीक है। Yes. अभी नेक्स्ट अप्रोचेस इनपुट ऑन ओवरऑल फोरकास्ट वैल्यू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो जो ओवरऑल वैल्यू है हमारे यूनाइटेड स्टेट में, हम उसमें वैल्यू एंटर कर देंगे, ठीक है। So we'll go into the solution. Here in solution only, right? हाँ, solution में है। So we'll just enter this number in 2025. तो पहले जो ईयर है हमारा, हम सबसे पहली जो हायरार्की है वहीं पे नंबर एंटर करेंगे, ओके। तो कितना एंटर करना है, 24,000 मिलियन, ओके। 24 नहीं, 2,40,000 मिलियन, ओके। सो 24,000,000 4 टाइम्स 0 एंड m, ठीक है। इतना वैल्यू डालेंगे तो दिस इज हाउ द नंबर इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो सारे जगह जो हायरार्की है, wherever the month is there, in all the months numbers got distributed equally, Yes. ठीक है। तो हमने, हमारे पास टोटल कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स, राइट। तो Yes. 24 को अगर दो लाख अगर डिवाइड करोगे तो ऐसे डिवाइड हो गया उसमें, ठीक है। Yes. इक्वली डिवाइड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, Distributed. डिस्ट्रीब्यूट द ओवरऑल फोरकास्ट वैल्यू, ठीक है। सो इन द स्टोर प्लान पेज, open the builder panel and change the table filter to private distribute private distribute plan version, ठीक है। तो अभी हम स्टोर टाइप प्लान में किए हैं, ठीक है। अभी कौन से पेज में बोल रहा है, Store स्टोर plan. प्लान। हाँ, अभी यहाँ पे जाके हम
स्टोर प्लान में जो भी हमने उधर प्लान किया, अभी जो हमने एंट्री की है वो इधर हम देखेंगे अब, ठीक है। Okay. ये हाउ द नंबर इज कमिंग अप। तो यहाँ पे जो हमारा वर्जन है, द वर्जन इज डिफरेंट। यहाँ पे हम प्लानिंग देख रहे हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फिल्टर इट, ओके। सो पहले हम उसको क्लोज करके, और आप यहाँ पर से यू कैन ओपन द बिल्डर पैनल एंड यहाँ से आप उसको वर्जन को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द फिल्टर, ठीक है। तो जो वर्जन हमने अभी क्रिएट किया है वो वर्जन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला हटा देते हैं। देखो अभी उधर एंटर किया था, ओके। So we went into this, click somewhere into the table, right click side panel, builder panel, filters, select the version. और वो version select कर लिया, right? Now select the file, save, ठीक है। So the value appears for the USS 2025 total. This for each month. The children and the United States parent do not contain any values, ठीक है। नीचे इसके नीचे वाले जो चिल्ड्रन है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसके ऊपर हमेशा जैसे हाउ आई कैन टॉक इट, कि जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे पापा हैं फॉर एग्जांपल, राइट। सो वट एवर आई ओन इज माई फादर ऑल्सो ओन इज, ठीक है, ठीक है। और मेरा चाइल्ड जो रहेगा, आई मीन अगर मेरे चाइल्ड के हाथ में पैसा दूंगा देन इट विल गो इनटू द फर्दर पेरेंट हायरार्की, ठीक है। अगर मेरे हाथ में देंगे तो इट विल गो इनटू माय फादर्स, व्हाट वी कैन से, मेरे अकाउंट में पैसा आया या मेरे पास पैसा है, सो माय फादर आल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ मेरे बेटे के पास पैसा है, ओके, ऐसे, ठीक है। बट नीचे कभी नहीं जाएगा इन द प्रॉपर्टी लेवल, नेवर इट विल गो इनटू द डाउन लेयर, ठीक है, ऑलवेज इट विल गो इनटू द अपर लेयर, ठीक है। ठीक है, तो ये वही समझाने का ट्राई कर रहे हैं, ओके। सिर्फ नो वेरिएबल्स एंड रीलोड डज नॉट वर्क, सो इट मे बी स्केलिंग इशू, सो go into the styling and select data region and click into the cell and select scale and format it, okay. So because of format also sometimes we will not be able to see the data, so that we can do it, okay. So we can go into the styling and from here you can do whatever is mentioned over here, okay. Styling, select the data region, okay. Data region you can select it and then go into the scale and unformat it, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो स्केल फॉर्मेट जो है यहाँ पे आप यू कैन सेलेक्ट 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी सिलेक्ट करना वो, और यहाँ से आपको फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड आप सेलेक्ट कर लोगे तो समटाइम्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट द वैल्यूज डजंट अपीयर्स इनटू द रिपोर्ट्स, ठीक है। तो इफ यू सेलेक्ट अनफॉर्मेटेड स्केल, सो ऑटोमेटिकली वेरेवर द नंबर इज अनफॉर्मेटेड, जैसे कई बार हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो उसकी वजह से वैल्यूज डजंट अपीयर करेक्टली। जैसे आप एक्सेल में कई बार वैल्यू एंटर करते हो तो वो क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली इट विल टेक इट एज अ 2E3 समथिंग वैल्यूज, अगर हमने कुछ बड़ा सा नंबर एक्सेल की सेल में डाला तो, ठीक है। हाउ इट डज इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑफ द पर्टिकुलर सेल इज देयर, ठीक है। इफ यू चेंज इट टू नंबर्स और उसको टेक्स्ट में करोगे तब जाके यू विल बी एबल टू सी द एक्चुअल नंबर इनटू द एक्सेल आल्सो, ठीक है। सिमिलर थिंग इज हियर, ठीक है, that you can do it using this particular functionality. Next is carry out the following distribution for United States 2025, ठीक है। So जैसे यहाँ पे लिखा हो कि what amount, so the operation type is distribute, okay, and where to, then select the fourth option is distributed equally among entity members of lower level, ठीक है। what amount, then again operation type is distribute source amount to target, ठीक है।
तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम अभी करेंगे यहाँ से, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। सो राइट क्लिक ऑन टॉप ऑफ द सेल ऑफ यूनाइटेड स्टेट 2025 एंड सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट वैल्यूज, ठीक है। तो कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट इन 2025, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट इन 2025 राइट क्लिक एंड इसके बाद में ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूट वाला ऑप्शन, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक टैब ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो है क्वेश्चन, okay, where to, ठीक है, and what is the method, what is the distribution key, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। automatically I mean system, based on the system recommendation you can see distribute equally among date member one below, ठीक है। तो just one below means उसके नीचे वाली हायरार्की में, जैसे होता है ना कि जब हमारे दादा थे फिर हमारे पापा हुए, राइट। तो हमारे दादा लोग जब I mean they distribute the properties, right? So sometimes they distribute equally, sometimes they do partially. Some they will keep for their till end of the day, and some they will distribute within the childs, like that they do, and then till after end of the day. I mean, when they get uh, pass, so after that, whatever whoever is taking care of the parents, they will I mean take care of, I mean they will take it to their circumstances. Otherwise, if no one is taking care, so everyone take again equally whatever the remaining things are there, right? Similar way. So distribute equally among the date members one below, distribute equally entity member of the same level, ठीक है। सेम लेवल मतलब कि भाई भाई में आपस में बांट लो। बट कई बार क्या होता है कि 2-3 जनरेशन नीचे तक कहानी पर चले जाती है, बट प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, राइट। तो उस केस में फिर अपने अपने को होते हैं कि नहीं मेरे को ये वाला खेत चाहिए, मेरे को ये वाला घर चाहिए, राइट। सब अपने अपने को होते हैं, राइट। सो इन दैट केस द डिस्ट्रीब्यूशन हैपन्स इन डिफरेंट वे, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट इज देयर, राइट। तो हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन शुड हैपन, I mean some recommendation is there, but manually also it can be done, ठीक है। तो जैसे इतनी प्रॉपर्टीज है, so how it should be distributed, you can see particular options कि distribute to entity members to same level, मतलब कि हमारे पापा लोग 4 भाई हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 भाई हैं फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट में कितने रीजन है, ईस्ट यूएस है, वेस्ट यूएस है, राइट। तो उसमें सब में ओवरसीज है, सब में हमारा डेटा आई मीन जो भी मनी है और जो अमाउंट है वो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट। तो वो सीन है यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो जो मैं रिलेशन आपको करके बता रहा हूँ ना वही चीज है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमारे केस में क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, घर मकान ये सब, तो डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। बट जब बड़े लेवल पे आप जाएंगे ना, जैसे कि इफ विल गो टू विशाल सिक्का और मार्क जुकरबर्ग फॉर एग्जांपल, ठीक है। So if they have their childs and they want to uh, distribute their properties, right? तो कैसे होगा, I mean how they will decide it कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा है and everything, right? So how they will decide it? तो उस केस में they will play with these things. So they will sit it and then they will decide कि मुझे इतना परसेंट चाहिए, मुझे इतना चाहिए, I mean whatever it is based on that. So they will plan it accordingly and then execute it, and then they will based on that final report they will share within each other, and then they will do the uh, final distribution, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये वैसे ही लिखा हुआ है कि व्हाट अमाउंट, सो डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेशन टाइप शुड बी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन टाइप इज डिस्ट्रीब्यूट, अमाउंट कितना है, ये हमारे पास ये टोटल अमाउंट है, राइट। एंड देन where to select the fourth option, distribute equally among entity member of lower level, मतलब कि नीचे लेवल तक भी जितने हैं सब में इक्वली जाना चाहिए, ओके। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमोंग एंटिटी मेंबर ऑफ लोअर लेवल, ठीक है, ये लिख रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूशन इक्वली अमोंग एंटिटी मेंबर ऑफ लोअर लेवल, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ये वाला।
इफ आई सेलेक्ट इट, देखो नीचे भी इधर ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, देन व्हाट अमाउंट, ओके, सो source amount. डिस्ट्रीब्यूट सोर्स अमाउंट टू टारगेट अमाउंट, ठीक है, Okay. वो हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। The planning panel opens into the right. In the what amount selection of the panel, select the distribute from the operation type drop down. Do not change the amount value and leave the checkbox deselected. In the where to select this particular options. So the option in the Yes. planning panel will change, provide you with the additional options to select. Okay. So in the what amount section plan, now select distribute source amount to target amount from operation type. ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन टाइप में फिर से हमारे पास मतलब जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किया ना उसके हिसाब से हमारे Yes. पास फर्दर वी गॉट इट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट सोर्स अमाउंट टू टारगेट अमाउंट, ठीक है, तो फिर से वही अमाउंट लेगा एंड देन leave the checkbox deselected. In the where to section of the planning panel, select override and override from the method drop down. Okay. तो यहाँ पे मेथड में हमारे पास अपेंड है, ठीक है। हाँ, अपेंड से काम नहीं चलेगा, हमको ओवरराइड करवाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे ब्लैंक मान लो पहले से कुछ नंबर्स थे कि पहले हाँ, हमारे दादा लोगों ने मान लो अपने नाती को भाई दे दिया कि हाँ लो भाई आपको 4 लाख हमने दे दिया, ठीक है। तो उसने अपना नॉर्थ ईस्ट में 4 लाख रख लिया पहले से, ठीक है। तो अब वो बोलेंगे कि नहीं अब तो वो मर गए, ठीक है, अब हमको फिर से हिस्सा चाहिए, राइट, समटाइम्स इट हैपेंस। तो वो क्या करेगा कि 4 लाख तो गया तो उनके उनके हो गया, ठीक है, अब हमको फिर से पूरा नया चाहिए, राइट। तो इन दैट केस इट विल ओवरराइट एवरीथिंग, ठीक है। तो पुराने वाले से उनको उसको काउंट नहीं किया जाएगा, अब जो बचा हुआ है उसमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। वैसे होता ना झगड़ा, पारिवारिक झगड़े, ठीक है, एवरी इन एवरी फैमिली इट हैपेंस, सेम थिंग इज देयर। ओके, तो सिमिलर अप्रोच इज हियर, ओके। Then overwrite method, drop down in the where to sections of the planning panel, select equal from the distribution key drop down, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनपुट वैल्यू भी कर सकते थे, इनपुट वैल्यू में आप जो भी नंबर्स डालोगे यहाँ पे ड्राइवर, ठीक है। तो भाई जैसे हमने बोल दिया कि पहले आपको 4 लाख दे दिया था तो उसमें से 4 लाख हटा दो नॉर्थ ईस्ट में से, ठीक है, तो उसको माइनस करके उतना वैल्यू डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट वैल्यू। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो सब में इक्वली ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। देखो 60-60 करोड़ रुपए ऐसे डिवाइड होगा 25-25%, ठीक है। तो वैल्यू ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। नाउ सिलेक्ट अप्लाई, ठीक है, तो ये आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखो पूरा नंबर अब जितने भी उसके चाइल्ड थे सब में ओवरसीज को छोड़ के सारे हो गए और सब में देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इक्वली, ठीक है। So now go to the store type plan page if needed. Select the data refresh. ठीक है, वो अप्लाई करने के बाद आप देखोगे तो द यूएस इज नाउ 0, ठीक है। अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो गया है ना, लेट मी जस्ट सेव इट। स्टोर टाइप प्लान में बोल रहा है कि इफ यू सी यहाँ पे वो जो हमने यूनाइटेड स्टेट में एंट्री करी थी अभी वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब जो हमारे दादा दादी थे जिनकी पूरी प्रॉपर्टीज थी वो सब अब बढ़ गई है, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, उनका किस्सा खत्म। ओके, सो यू कैन सी 0। ठीक है। ठीक है, अब वो पूरी पूरी प्रॉपर्टीज इधर बढ़ चुकी है, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पे दैट इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है। नाउ add an additional to the overall forecast and distribution. So in the store type plan add the same this number over there and this particular is automatically disaggregated to each month, okay। तो ये देखते हैं इसको डाल के फिर से स्टोर टाइप प्लान में जाना है यहाँ पे
Now we'll add up here 7200M. ओके, जैसे मैं उसको एंटर करूंगा तो वो सारे में फिर से डिसएग्रीगेट हो जाएगी. ओके, 600 you can see it is getting distributed to the each. ठीक है. Now go to the store type plan and refresh the data. So the value that appears for the United States is now adding up. Okay. तब जैसे इनके इसमें जाएगा तो उनके जो बच्चे रहेंगे सब में वैल्यू और ऐड हो जाएगी. ठीक है, मतलब वहां पे वैल्यू ऐड हो जाएगी, बट अभी हमने फिर से आपको अगर रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर से यहाँ पे आपको सब बच्चों में फिर से बांटना. फॉर एग्जांपल दादा दादी ने फिर से जमीन खरीद ली, राइट. सो अब उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज हो गई, राइट. सो अगेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और नो, इट इज अप टू देयर चॉइस. ठीक है, वैसा हो गया. तो देखो खाली यूनाइटेड स्टेट में वैल्यू गॉट एडेड, बाकी सब में नहीं हुआ है. ठीक है. So open the planning panel and perform the following distribution for the United States. फिर से आपको करना है. ठीक है, वही चीज. अब फिर से उन्होंने जमीन खरीदी तो फिर से सब आ गए कि भाई अब हमारे माँ बाप. ठीक है, तो अगेन दे नीड प्रॉपर्टी. ठीक है, तो फिर से इसके डिस्ट्रीब्यूशन. फार्मूलास ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं ना इसमें, ये वाले पेजेस में. हाँ, प्लानिंग नहीं नहीं नहीं, हायरार्की हमने डिफाइन की हुई है ना पहले से. ये हायरार्की हमने पहले एक एक बाप था इंटरप्राइज. ठीक है, फिर उसमें यूनाइटेड स्टेट आया, फिर यूनाइटेड स्टेट में फिर ईस्ट यूएस आया, फिर नॉर्थ ईस्ट आया, साउथ ईस्ट आया. तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर पहले ईस्ट यूएस आया, वेस्ट यूएस आया, फिर इनके दो दो बच्चे हो गए. ठीक है, तो भाई जितने बच्चे होंगे उसके हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना फर्दर. ठीक है, तो पहले अगर आप देखोगे तो जो हमारा 24 था, पहले 120 मतलब 12 ईस्ट यूएस और वेस्ट में गया, फिर उनके बच्चों में फिर 6 गया. ठीक है, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि मतलब एक एक दादा थे, उनके दादा के बेटों में इक्वली गया, फिर उसके नीचे फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट. तो वैसे. ठीक है, तभी दादा के पास फिर जमीन आ गई, तो फिर सबको चाहिए कि भाई उनके नाती पोतों को भी चाहिए, उनके बेटों को भी चाहिए, राइट. तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम. ठीक है, तो अगेन राइट क्लिक ऑन टॉप ऑफ दिस, देन अगेन डू डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यू. तो फिर से पैनल ओपन होगा. ठीक है, फिर से अभी भाई वैल्यू ऐड हो गई तो फिर से हमको हिस्सा चाहिए, राइट. तो फिर से कितना कितना जाएगा वो हमको करना है यहाँ पे, राइट. तो रिडिस्ट्रीब्यूट द इक्वली अमॉन्ग एंटिटी मेंबर्स ऑफ लोअर लेवल. ठीक है, वही करना है. ठीक है, वही वाला ऑप्शन लेना. जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट सोर्स अमाउंट टू द टारगेट अमाउंट, फिर से वही करना है. रिपीटेटिव है, मतलब हमने अगर चेंज किया है वैल्यूज में तो फिर से वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा वो यहाँ से हमको पता चलेगा. ठीक है, अब हमारा ये वैल्यू आ गया. पहले हमारा 24 था और 24/7 आ गया. ठीक है, एंड देन ओवरराइट इक्वली, फिर से वही यहाँ पे अपेंड था. अपेंड करोगे तो क्या होगा, जो पहले मिल चुका है वो तो है ही, प्लस अभी जो नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसको अपेंड कर देगा, उसी में ऐड कर देगा. ओके, दैट इज व्हाट अपेंड. ठीक है, तो अभी हम ओवरराइट करेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, अभी फिर से सब कुछ नया होगा, राइट. तो फिर से यहाँ पे इक्वली करेंगे. ठीक है, अब फिर आपको जैसे करना है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूट की आपको इक्वली करना है, प्रोपोर्शनली करना है, कैसे करना है वो, मतलब कॉल रहता है ना कि जिस बेटे ने भाई माँ बाप की सेवा की उसको प्रोपोर्शनली चाहिए, राइट. बाकी सबको इक्वली दे दो, जिसने ज्यादा किया, जिस सेवा सेवा ज्यादा की है उसको उसको ज्यादा दे दो, राइट. ठीक है, तो वैसा, तो इट इज अप टू द कॉल कैसे होने वाला. ठीक है, तो ये हो गया. तो वही चीजें यहाँ पे फिर से बताई हुई है. ठीक है, तो उसको हम जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इधर. ठीक है, तो जो 2472 था वो अभी 123 पहले उनके बेटों में बढ़ गया, फिर उनके बच्चों को फिर इक्वली बढ़ गया. ठीक है, वैसे यहाँ पे भी दिखाया हुआ है स्क्रीनशॉट पे.
ठीक है। Okay. अब बोल रहे हैं कि नाउ इनपुट डेटा बाय नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एंड देन रिडिस्ट्रीब्यूट। अभी Okay. नॉर्थ ईस्ट रीजन, अब मतलब बच्चे को जो सबसे चाइल्ड है, ठीक है, उसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूट, उसमें वैल्यू ऐड करेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे होगा? तो खाली अब यहाँ का यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ Okay. जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा? खाली सेम लेवल पे ये कर जो सकते हैं, उसके नीचे तो है ही नहीं, हमारी हायरार्की है ही नहीं, राइट? अभी इसके बच्चे हाँ पैदा ही नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी सेम लेवल पे जाएगा, मतलब भाई भाई को बांटना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाँ झगड़ा होगा ज्यादा, ठीक है। ठीक है, भाई भाई में ज्यादा झगड़ा होता है, ठीक है। बाकी सबको निपट लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। तो अब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेम टू वैसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओवरराइड रहेगा इक्वली, तो यहाँ पे सेम लेवल, क्योंकि फर्दर हायरार्की नहीं है, राइट? तो सेम लेवल पे होगा, ठीक है। ओ, ये वाला हमारा कर दिया हमने ना, ये 4 7 वाला हो गया, ये कर दिया हमने। नाउ इनपुट डेटा बाय नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो इसको हम सेव मार देते हैं। अब again go into the on the page of increase the northeast to this of 2025, ठीक है। तब नॉर्थ ईस्ट को ही सब कुछ देने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हमने अभी डाला था। So the value of the United States 2025 is now this much, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालेंगे, इसको हटा के, क्या बोल रहा है वो कि 72,000 मिलियन डाल दो इसको, ठीक है। 7213 टाइम्स 0 एंड, ठीक है, हिट एंटर। जैसे मैं इसमें डालूंगा तो भाई इसके दादा के पास फिर ज्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर लेवल पे जाएगा, राइट? उसके बाप के हैं उसमें भी जाएगा एंड देन फर्दर टू दादा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो अब इसके पास ज्यादा पैसा हो गया, तो भाई के पास अगर ज्यादा हो जाता तो भाई बोलता कि अरे तेरे पास तो ज्यादा पैसा है, अभी हमको भी चाहिए, राइट? तो ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये ऐड हो गया, ठीक है। सो अभी द वैल्यू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज दिस, ठीक है। अब भाई जैसे ही दादा के पास ज्यादा दिखेगा, ठीक है, तो सब फिर आ जाएंगे कि नहीं, हमारे दादा के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, हमको तो इकसठ ही मिली, नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 72 है, हमारे पास 61 ही है, ठीक है, हमको भी चाहिए, तो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगेन सेम थिंग इज देयर, फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। Okay. Awesome. बस, तो फिर राइट क्लिक इनटू दिस, सेम अप्रोच, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो फिर से वी कैन यूज की रिडिस्ट्रीब्यूट एंड वेयर टू, यहाँ पे लिखा नहीं गया। सो distribute values, verify the distribution is selected as the operation type, do not change the amount value, leave the checkbox deselected, Same only. ठीक। यहाँ पे सेम लेना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो 64,350 सबके पास चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम चेंज नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड इज ओवरराइट इक्वली, तो सबको वैल्यू ऐसे चेंज हो जाएगी, ना अप्लाई, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इतना ही था इस एक्सरसाइज में। समझ में आ गया हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू द हायरार्की? Yes.
नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगर डेटा वैलिडेशन रूल। ठीक है, तो अब डेटा वैलिडेशन रूल क्रिएट करने के लिए हमको मॉडल बनाना पड़ेगा एंड देन विल क्रिएट अ वैलिडेशन रूल। ठीक है, सो दिस वन विल डू टू टुमारो। आप अवेलेबल हो क्या? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।